Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. तो देखते हैं पास्ट वीक में हमारे लिए एग्जाम से स्पेसिफिक अरुणाचल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। सबसे पहले on the account of the day, that is Independence Day, let us talk about one of the most important freedom fighters from our state, that is Moji Ribaji, right? So this article was recently published in Arunachal Times. So मैंने सोचा कि ये हमारे लिए personality wise this can be an important question, especially for prelims, right? So एक बार उनके ज़िंदगी के बारे में देख लेते हैं, इनके contributions के बारे में देखते हैं, right? So Moji Ribaji was born in 1911, okay, and he was born in the Dari village, present day Lepa Radha district. Okay, and he is a very important freedom fighter for not only our state, for our entire nation. उनके contributions जो है बहुत ही significant है, right? So among his contributions, he is one of the early leaders, है ना? As you can see, he was born in 1911. He was one of the early leaders of the Indian nationalistic movement, particularly which connected the tribal communities to the rest ऑफ इंडिया, राइट? अगर आप हिस्ट्री बुक्स देखेंगे तो रेस्ट ऑफ इंडिया में कहानियाँ बहुत प्रोमिनेंट है, सबके बारे में हमें पता होता है, पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट को जिन लोगों ने जोड़ा था, वन ऑफ द पीपल इज टोमी रिबाजी, राइट? ओके, मोजी रिबाजी. His exposure to nationalist ideas during his education in Khodia and Jorhat. So what happened is that Moji Ribaji was very much influenced by the stories of personalities such as Maniram Dewan, जो असम के फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, पियोली फुकॉन, इन सब के कहानियाँ सुन के ही वॉज वेरी मच मोटिवेटेड एंड ही डिसाइडेड दैट द नेशनलिस्ट कॉज पे उनको भी जो है 100% योगदान देना चाहिए. एंड आफ्टर हियरिंग दी स्टोरीज ऑफ सैक्रिफाइस ही वेंट अहेड एंड कनेक्टेड विद लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई. ओके, यू विल नो हिम एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, राइट? सो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई के साथ उन्होंने जोड़ा एंड देन ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in organizing anti-British groups, okay, during the freedom struggle and mobilizing people in the Siang belt, right? So major part of his operation हम Siang belt में बोलेंगे, okay, undivided Siang जो है. And he also played a very key role in the Deepa Congress movement, okay? And इससे क्या हुआ, this Deepa Congress movement sought to spread the entire, northeast में nationalistic fervor spread करने का जो जिम्मेदारी था Deepa Congress movement ने लिया था, right? And in 1946 Deepa Congress committee was formed and Moji Ribaji was elected as the general secretary, okay? As a part of his freedom struggle, as I said, he connected with Gopinath Bordoloi ji, okay, and he attracted British attention because of this, okay, and he not only participated in nationalist activities, उन्होंने एक स्कूल भी खोला था दीपा विलेज में, और इस स्कूल को देख के ब्रिटिश लोग जो है, the Britishers also said कि this is becoming dangerous for them, and what they did is they also imprisoned him, okay, उनका arrest हुआ था और पासीघाट में भी उनका imprisonment हुआ था, okay. So finally, on 15th August 1947, as the entirety of India was celebrating its independence, Deepa village में flag unfurl किया मोजी रिबाजी ने, हमारा national flag in 15th August 1947, right? And it is a very very important political history. Prelims perspective से तो बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है कि दीपा विलेज में 1947 में 15th अगस्त को किसने फ्लैग अनफोल्ड किया था? मोजी रिबा, ओके. एंड ही इज well known into the, for spreading the entire nationalist movement ideas into the tribal and frontier regions of India, right? Mainland India तो definitely involved था ही, लेकिन जो हमारे frontier areas थे वहाँ पे भी nationalist consciousness spread करने का बहुत ज़्यादा ही important role उन्होंने play किया था, okay? Recognition उनको in because of his freedom role in the freedom struggle in 1972 मोजी रिबा जी को ताम्रपत्र अवार्ड किया गया था by the then Prime Minister Indira Gandhi, right? Again prelim specific information कि ताम्रपत्र उन्हें कब मिला था या फिर उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था. इट इज इन 1972 15th अगस्त जो उन्हें ताम्रपत्र दिया गया था, राइट, एज अ रिकग्निशन फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल, राइट. उसी के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिशन अरुण हिमवीर. ओके, सो हमारी इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी बॉर्डर एरियाज में, ओके, बॉर्डर एरियाज में अलग अलग मिशंस
हम करते रहते हैं, बिकॉज द फोकस इज नॉट सिंपली सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर, द फोकस इज ऑल्सो अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटीज दैट लिव नियर दिस बॉर्डर्स। राइट, आपको याद होगा कि हमारे बॉर्डर विलेजेस के लिए भी एक प्रोग्राम है। व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। राइट, सो इंडियन आर्मी क्या करती है, हमारे जो सेंट्रल इनिशिएटिव्स हैं इन बॉर्डर एरियाज को लेके, उनके साथ इंटीग्रेट करके अपने साथ अपने से भी जो है प्रोग्राम्स चालू करती है। वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स इज मिशन अरुण हिमवीर। ओके, अरुण हिमवीर में क्या है? इट इज ए कोलैबोरेशन with the Arunachal Pradesh Agricultural Marketing Board and the SSB, that is the सशस्त्र सीमा बल। ओके, सो सशस्त्र सीमा बल और अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी मिलके ये बोल रही है कि जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी फूड सप्लाई है, ओके, जो भी फूड सप्लाई है एसएसबी के लिए, जो भी फूड सप्लाई है, ये सप्लाई लोकली प्रोक्योर किया जाएगा। पहले भी इंडियन आर्मी ने भी इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए हैं। राइट, सो क्या होता है कि बिकॉज दीज पर्सनल आर सिचुएटेड एंड दे आर सपोज टू गार्ड दी बॉर्डर्स, बॉर्डर्स जनरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत रिमोट एरियाज में होते हैं। बिकॉज दीज आर रिमोट लोकेशंस, वहाँ तक जो है मेन हाईवे से जाके खाना पहुंचाना, जो है सप्लाईज पहुंचाना, जो भी चाहिए आर्मी के पर्सनल को, ये बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है। ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, एसएसबी ने बोला है व्हाई डोंट वी सोर्स ऑल द मटेरियल फ्रॉम द लोकल प्रोड्यूस, है ना, जो लोकल फार्मर्स है, लोकल कम्युनिटीज है, लोकल विलेजेस से, उनसे हम खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ मेन चैनल सप्लाई। राइट, तो दिस इज वन ऑफ द, इट इज़ अ वेरी एनकरेजिंग प्रोग्राम, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे विलेजेस हैं, एंड स्पेशली हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। राइट, इनके इनकम डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि आर्मी या फिर एसएसबी जो है पहले ही बोल देगी कि उनको कितना सा सप्लाई चाहिए, उसके बेसिस पे विलेजर्स को पेमेंट मिल जाएगा। राइट, सो इट इज़ एश्योर्ड पेमेंट। इस सॉर्ट ऑफ हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी तरह ही ये काम करेगा। राइट, ओके, सो अरुण हिमवीर क्या करेगा मिशन? इट विल क्रिएट अ रिलायबल मार्केट फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स। तो लोकल प्रोड्यूसर्स जो है, दे विल नॉट हैव टू गो सर्चिंग, उनको ढूंढते जाना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे बेचें अपना प्रोड्यूस। एश्योर्ड इनकम मिलेगा उनको, एंड द मार्केट विल बी प्रोवाइडेड बाय नन अदर देन द एसएसबी इटसेल्फ। ओके, so this is a very encouraging sign for the border villages। यहाँ पे फार्मर्स का जो है, डायरेक्टली फार्मर्स से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से और कोऑपरेटिव से, चार तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एंटिटीज मेंशन किए गए हैं किन किन से ये प्रोड्यूस लिया जाएगा। एंड व्हाट विल दे बी टेकिंग? दे विल बी टेकिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड पोल्ट्री। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन मिशन अरुण हिमवीर। ओके, तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे फार्मर्स का लाइवलीहुड जो है, इट विल बी मच मोर एश्योर्ड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम होगा, एश्योर्ड प्राइस मिलेगा उन्हें। राइट, और एलाइड सेक्टर पे आपने देखा यहाँ पे ज़्यादा फोकस है, तो एलाइड सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। राइट, साथ ही साथ यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की जा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया आर मोस्टली लेड बाई वुमेन। दीज आर मोस्टली वुमेन लेड। तो ऐसे इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? दीज आर ए डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, इफ यू वांट टू एम्पावर वुमेन स्पेशली इन द रूरल एरियाज, आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू एंश्योर कि उनका लाइवलीहुड ठीक रहे। इफ द एसएचजीज आर इन्वॉल्विंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, देन फार्मिंग रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो है डायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट को रिजल्ट कर सकते हैं, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मोस्टली वुमेन लेड इन इंडिया एंड ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश। राइट, अब इस पे जो पूरा न्यूज़ है, इस पे दो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड द सशस्त्र सीमा बल। राइट, दोनों को देखेंगे। ये एपी एएमबी जो है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बड़ा रोल प्ले करती है। राइट, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017। राइट, सो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स फंक्शंस इंक्लूड डेवलपिंग एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, मार्केट लिंकेजेस ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फार्मर से कंज्यूमर तक का लिंकेज ठीक करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे विलेज है जहाँ पे फार्मर्स रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं, मे बी दिस रोड नीड्स टू बी फिक्स्ड, मे बी इस रोड पे आपको ट्रांसपोर्टेशन ठीक करना है, ताकि आप अगर फार्मर को अपना प्रोड्यूस लेके आना है, तो एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड विल फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू मे बी ट्रक्स और लॉरीज। राइट, सो इस तरीके के काम जो है ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड जो है करता है। राइट, ये इस मार्केटिंग बोर्ड ने इसके पहले मिशन कृषि वीर पे भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, लेकिन वी हैव आल्सो स्टडीड मिशन कृषि वीर, इफ यू रिमेंबर। ओके, कृषि वीर के बारे में लास्ट में विल इंक्लूड देयर। लेट्स टॉक अबाउट सशस्त्र सीमा बल। इट इज अ CAPF। Okay, it is a CAPF
फोर्स दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर आता है सशस्त्र सीमा बल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्पेशल सर्विस ब्यूरो एज अ स्पेशल सर्विस ब्यूरो। इसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था 63 में, इंडोसिनो वॉर के बाद। आपको पता होगा वी हैड द इंडोसिनो वॉर इन 1962। आफ्टर दिस इन 63 दिस SSB was established। इसे क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? टू गार्ड द इंडो नेपाल बॉर्डर एंड दी इंडो भूटान बॉर्डर। अगेन कभी कभी जो है इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। कौन सा बटालियन या फिर कौन सा फोर्स जो है, विच फोर्स गार्ड्स विच पर्टिकुलर बॉर्डर ऑफ इंडिया, राइट। आपने ITBP का भी नाम सुना होगा। तो अलग अलग फोर्सेस जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर्स हमारे गार्ड करते हैं। इन्हें नोट करके रखना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो इट वाज आफ्टर 1963। उसके बाद इसे होम मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया एंड देन इट वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडो भूटान एंड इंडो नेपाल बॉर्डर गार्डिंग, राइट। और इसका जो मैंडेट है, इट इज नॉट सिंपली अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बॉर्डर ही गार्ड करेंगे। आजकल के दिन में जो भी हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, देयर मैंडेट आल्सो इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटीज दैट स्टे नियर द बॉर्डर्स, अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ द कम्युनिटीज दैट स्टे नियर द बॉर्डर्स, राइट। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर भी जगाना है उनको। उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी कम्युनिटीज बॉर्डर के आसपास है, सिंपली बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ द बॉर्डर, उनका डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, राइट। अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली उनको बॉर्डर क्राइम्स देखने हैं, अनऑथराइज्ड एंट्री देखना है, स्मगलिंग देखना है, राइट, ऑल ऑफ दिस। अब इस पूरे चीज का जो हमने हिमवीर के बारे में बात किया है, उसके बारे में दिया गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है। वी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एश्योर्ड मार्केट। एश्योर्ड मार्केट मतलब एश्योर्ड प्राइस, ठीक है। तो फार्मर लाइवलीहुड इज डायरेक्टली लिंक्ड हियर। फूड सिक्योरिटी फॉर द फोर्सेस, उन्हें लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। उनका जो बजट है, दैट बजट कैन बी effectively used for other capital assets में भी, राइट। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा यहाँ पे, फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। अगर रिवर्स माइग्रेशन, देखिए बार बार मैं बोलूंगा, whenever we talk about remote areas and development of remote areas, आप देखेंगे we will always also include this point of reverse migration। जनरली क्या होता है हमारे बॉर्डर एरियाज में, डेवलपमेंट कम होने की वजह से द यूथ आर ट्राइंग टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू रेस्ट ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में और रिमोट एरियाज में दिस हैज बीन एन इशू। आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उससे क्या हो जाता है, लेबर शॉर्टेज हो जाता है, यू अंडरस्टैंडिंग। और इस लेबर शॉर्टेज को फिर भरपाई करने के लिए बाहर से फिर से लेबर लेके आना पड़ता है, प्राइस डिफरेंसेस होते हैं, आई अंडरस्टैंडिंग। सो इन सब चीजों का वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स इज, अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे रिवर्स माइग्रेशन, पीपल विल फाइंड कि अच्छा ठीक है बॉर्डर एरियाज में मेरा घर है, लेकिन मैंने जॉब ढूंढ के जो हैदराबाद चला गया, मैं बेंगलुरु चला गया, बट इफ माई फैमिली इज एबल टू अर्न through Arun Himveer mission a good amount of remuneration by selling the produce directly to the SSB, तो फिर ठीक है मैं वापस जाके वहाँ पे खेती करूँगा फिर। that is how reverse migration works, right। तो ये लोकली सोर्स फूड, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी दिलाएगा सिर्फ SSB को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ ये कनेक्टेड है, मैंने जैसे पहले बोला था। एंड लोकल इकोसिस्टम जो है यहाँ पे एनकरेज्ड होगा, इट विल बी सपोर्टेड, राइट। लेट अस लुक अ लिटिल बिट अबाउट द मिशन कृषि वीर। ये मैंने बताया था पहले भी, हमने डिस्कस किया है। ये जो है APMBA ने लॉन्च किया था 2022 में। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है इंडियन आर्मी के लिए देने की बात चल रही थी। सो रिमेंबर अरुण हिमवीर जो है, इट इज फॉर द सशस्त्र सीमा बल। दिस कम्स अंडर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। दिस इज नॉट द सेम एज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए क्या है? कृषि वीर, ओके। दिस इज फॉर द इंडियन आर्मी, दिस इज डिफरेंट। ये दोनों प्रोग्राम्स अलग है। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए तो दोनों को रिवर्स कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि कृषि वीर इज फॉर SSB एंड अरुण हिमवीर इज फॉर इंडियन आर्मी। नो, यू अंडरस्टैंड नाउ, राइट। अभी हम ये गलती नहीं करेंगे, ओके। सो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एग्जामिनेशंस जो हमारे APPS CCE जो है, और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम है, इन दो एग्जाम्स को लेके रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, बहुत सारे की डिमांड्स उठाए गए थे। सो वी हैव वेटेड अंटिल द न्यूज़ हैज कम आउट एंड नाउ द न्यूज़ इज फाइनली आउट कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई पावर्ड कमिटी, दे हैव नाउ स्क्रैप्ड द 80-20 रेशियो ऑफ जॉब कोटा इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। तो इसका मतलब क्या है? देखिए पहले ये समझते हैं कि 80-20 जॉब कोटा पहले मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए 80-20 जॉब कोटा का मतलब ये था कि 80 आउट ऑफ 100 सीट्स
अगर गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट में 100 सीट्स हैं तो 80 सीट्स वेर डायरेक्टली फॉर दी अरुणाचल प्रदेश एसटी कम्युनिटीज, जिनके पास ये एसटी सर्टिफिकेट है उनके लिए ये जॉब होता था। लेकिन 20 सीट्स क्या होते थे, ये ओपन कैटेगरी या फिर ओपन कंपटीशन में डाला गया था। ओपन कंपटीशन का मतलब ये है कि पीपल फ्रॉम आउटसाइड वेर ऑल्सो एबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और डिमांड ये उठ रहा था धीरे धीरे कि पहले चलो एक आर्ग्यूमेंट ये था पहले कि जो है बिकॉज ऑफ द लोअर पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टेट मे बी दिस 20 was नेसेसरी कोटा रिक्वायर्ड। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टेट डेवलप कर रहा है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स इन जनरल, उन्होंने बोलना शुरू किया दैट वी नो लॉन्गर नीड द सपोर्ट ऑफ दिस 20। इसका मतलब ये है कि ये 20 अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। व्हाट वी कैन डू इज 100% हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जिनका भी अरुणाचल प्रदेश एसटी वाला सर्टिफिकेट है, जिनका भी पीआरसी है, हम देखेंगे बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, everything should be directly for the people who reside and who are a part of the scheduled tribe community in the state of Arunachal, right? Okay, so आपको पता है why is this important? This is important for us because हमारा state जो है, you can say it has very high diversity of scheduled tribe people, right? Most of our population is scheduled tribe. और इसके चलते ये गवर्नमेंट के में सीट्स कैसे डिवाइड होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? तो अभी मैंने जैसे बताया एपीएसटी के लिए पहले 80% था बिफोर दिस नोटिफिकेशन, नाउ इट इज 100%, राइट? तो 20% को जो हमारी कमीशन है, कमीशन बोलती थी दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओपन कॉम्पिटिशन। ओके, 20% को ओपन कॉम्पिटिशन के रूप में रखा गया था। नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, सब कुछ 100% है। व्हाट इज द चेंज, एक बार देखिए। इस चेंज के बाद ये जो फ्रेमवर्क है, इट इज गोइंग टू अप्लाई टू ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट्स। ओके, इसमें क्या होगा, आपको एक पीआरसी चाहिए कि आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। आपको अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोफिशिएंसी इन अ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल या फिर लोकल डायलेक्ट ऑफ एनी इंडिजिनस एपीएसटी ट्राइब। ओके, सो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं अभी फॉर अपियरिंग इन द APSCC और APSSB, राइट? अगर हम स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में या फिर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, राइट, देन यू विल नीड और फिर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द APPSC सर्विस कमीशन, यू विल नीड दीज 3 सर्टिफिकेट्स। ओके, तो दिस इज द चेंज हियर, राइट? एंड ये जो है पहले से ही ये डिमांड आते आ रहा था, एंड बिफोर आप लोगों का जो एग्जाम है, आपके एग्जाम के पहले इस डिमांड को फुलफिल करने का जो है बहुत ज़्यादा चल रहा था, राइट? ओके, सो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, लोकल रिप्रेजेंटेशन अभी 100% होगा, ठीक है? इट विल बी मोर क्लोजली लिंक्ड विद द रियलिटीज ऑफ आवर स्टेट, एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन यहाँ पे होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट, ये प्रोमोट होगा। You can see how we are promoting local language and dialects, right? And uniform recruitment होगा यहाँ पे for group A, B, C, ताकि यहाँ पे और कोई ambiguities नहीं होंगे, डायरेक्टली जो है 100% यहाँ पे APST आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, राइट? और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव होता है इन जनरल, राइट? और तो ये जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हमारे हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सी गवर्नमेंट जॉब इज नथिंग बट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जस्टिस की जस्टिस जो है, ये सोशल जस्टिस जो है हमारे कम्युनिटीज को किया जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली देखना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जस्ट बिकॉज दिस नोटिफिकेशन इज आउट, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली यही पूछा जाए। इसके साथ एक्चुअली व्हाट इज को रिलेटिव यहाँ पे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, उसे देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस इशू को रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 16(4), आपको पता है आर्टिकल 16(4) परमिट करता है स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस which are not adequately represented in the state services। ठीक है, आर्टिकल 16(4) यहाँ पे रिलेटेड है। इसके साथ आर्टिकल 16(3) भी रिलेटेड है। इट परमिट्स द पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, उसके साथ 5th और 6th शेड्यूल प्रोटेक्शंस जो है यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है फॉर अ ट्राइबल पॉपुलेशन। वी हैव आर्टिकल 371H, जहाँ पे वी हैव गवर्नर को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है अरुणाचल में, तो
regarding the state's distinctive geographical and security circumstances. So गवर्नर के पास भी बहुत सारा पावर है टू एंश्योर कि हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन की सिक्योरिटी के लिए या फिर हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाए. द गवर्नमेंट कैन टेक गवर्नर कैन टेक अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी डिसीजंस, राइट. ठीक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन दैट वाज जस्ट रिलीज्ड. ओके. सो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द फुट एंड माउथ डिजीज. ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. रिसेंटली बताया गया है कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है हमारे स्टेट में एक आउटब्रेक की तरह अनाउंस किया गया है, राइट. अब ये थोड़ा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है बिकॉज फुट एंड माउथ डिजीज जनरली किसे अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स कैटल. ये कैटल को अफेक्ट करता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटल और ब्रीड्स ऑफ कैटल दैट वी हैव इज द मिथुन. ओके. तो ये हमारे स्टेट के लिए नॉट ओनली फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है? अभी दिबांग वैली में, ईस्ट कामेंग में, पाके केसांग, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है. ओके. सो लेट अस अंडरस्टैंड फुट एंड माउथ डिजीज होता क्या है. देखिए ये एक वायरल डिजीज है. इट इज़ अ वायरल डिजीज. आप लोगों ने अगर बायोटेक्नोलॉजी के क्लासेस किए हैं तो किस तरीके का वायरस है ये? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस. ओके. दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस. इसे फुट एंड माउथ डिजीज वायरस बोला जाता है. ठीक है. और ये वायरस जो है इस डिजीज के थ्रू जो है बहुत इन्फेक्शियसली स्प्रेड होता है. तो ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है. इसीलिए प्रॉब्लम बहुत सबसे ज़्यादा है क्योंकि कैटल को जब आप एक साथ रखेंगे, एक को अगर हो जाता है फुट एंड माउथ डिजीज तो पूरे कैटल को फुट एंड माउथ डिजीज आपका हो सकता है, राइट. सो इट लीड्स टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस. इससे प्रॉब्लम्स क्या है कि कैटल को फीवर हो जाता है. ठीक है. ब्लिस्टर्स हो जाते हैं माउथ और फीट में और एक्सेसिव सेलिवेशन होता है, लेमनेस एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, राइट. सो आपके अगर मिल्क एनिमल्स हैं, ओके, इफ यू हैव मिल्क एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, राइट. सो दीज आर द मेजर इश्यूज एज फार एज फुट एंड माउथ डिजीज इज कंसर्न. कैटल की बात हम कर रहे हैं. इट कैन ऑल्सो हैपन टू बफेलोज, पिग्स, शीप, गोट एंड मिथुन. ओके. हूव्ड एनिमल्स, जो क्लोव हूव्ड एनिमल्स होते हैं, क्लोवन हूव्ड एनिमल्स, उनमें सबसे ज़्यादा ये डिजीज होता है, राइट. पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इसके आउटब्रेक्स बार पीरियोडिकली हमें देखने को मिलते हैं. अरुणाचल में अभी ये डिक्लेयर किया गया है. ठीक है. इसके लिए व्हाट इज द क्योर? द वैक्सीनेशन इज द प्राइमरी क्योर. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ता है बिफोर दिस डिजीज हैपेंस, राइट. सो द मोमेंट दिस डिजीज इज ऑल्सो देयर, तो वैक्सीनेशन ड्राइव्स को भी हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. पूरे रूरल एरियाज में या फिर कैटल कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में या फिर मिथुन कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में जाके हर जगह पे हमें वैक्सीनेशन ड्राइव्स करने पड़ेंगे. वही हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, राइट. सो इट इज सिग्निफिकेंट हमारे लिए. मिथुन की बात कर ली है हमने. उसके बाद वी हैव अ कल्चरल सिग्निफिकेंस एज फार एज द एनिमल्स दैट इज द मिथुन इज कंसर्न. रूरल लाइफ स्टॉक जो है, नॉट ओनली मिथुन बट यहाँ पे हम पिग्स की भी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अदर एनिमल्स. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे एलाइड सेक्टर जो है इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर. एलाइड सेक्टर इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू आवर एग्रीकल्चरल इनकम, राइट. और इसके साथ साथ बॉर्डर के साथ देखिए, हम व्हेन वी आर शेयरिंग द बॉर्डर, ओके, वी आर शेयरिंग द बॉर्डर विद इन स्टेट्स हियर एंड स्टेट्स हियर, तो इस डिजीज के स्प्रेड होने का भी डेंजर रहता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इसी तरीके से जो है डिजीजेस अमॉन्ग एनिमल्स भी स्प्रेड हो सकते हैं, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर मेजर कंसर्न्स रिगार्डिंग द आउटब्रेक ऑफ दिस डिजीज. ओके. तो इससे जो है अभी क्या करना है? हमें सर्वेलेंस करना है और ढूंढ के निकालना है कहाँ कहाँ पे एनिमल्स को जो है फुट एंड माउथ डिजीज हुआ है, वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव्स करने हैं. एंड से दिस ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क जो है, आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा है, इट इज रिलेटिव टू वन हेल्थ अप्रोच, है ना. वन हेल्थ अप्रोच क्या है? वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू कैटेगराइज ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ एज सेपरेट बींग्स. आफ्टर कोविड-19 या फिर उससे पहले भी हमने देखा है कि जूनोटिक डिजीजेस बहुत होते हैं, राइट. तो एनिमल्स में जो डिजीजेस होते हैं कभी कभी जो है इंसानों तक भी आ जाते हैं, राइट. सो एक वन हेल्थ अप्रोच के साथ हमें इसे ट्रीट करना चाहिए विद द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट इट डिजर्व्स. ठीक है. तो अभी जो है वैक्सीनेशन का चल रहा है यहाँ पे, राइट. नाउ एक लेट अस टॉक अबाउट द ओवरआर्चिंग प्रोग्राम्स. नेशनल लेवल पे क्या किया जाता है फॉर एनिमल डिजीजेस? वी हैव द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. ओके. तो एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. एंड इट फोकसेस ऑन डिजीजेस लाइक फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस. ओके. तो ये डिजीज पे ऑलरेडी हमारा फोकस है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके लिए भी जो है वैक्सीनेशन किया जाता है ऑन अ 6 मंथली बेसिस, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द अरुणाचल में अगर ये हुआ है, इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट. वी कैन इंटीग्रेट आवर प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स विद द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राइट. तो यहाँ पे क्या करना है वे फॉरवर्ड? फाइनली यूनिवर्सल वैक्सीनेशन.
आपको करना है, डिजीज सर्वेलेंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, और आपका जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है इसे भी स्ट्रॉन्ग कराना है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि मिथुन की रिसर्च के लिए जो है पासीघाट में अलग अलग जगहों पे जो है फोकस किया जा रहा है। दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इट, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। वेटरिनरी क्लिनिक मैंने रिसेंटली बात किया था, एस्टैब्लिश हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। सो ये वेटरिनरी हॉस्पिटल, तो इस तरीके की चीज़ें जो है, दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स ऑल्सो हेल्प अस इन कंट्रोलिंग डिजीजेस लाइक फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, ओके। सो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीक, विल मीट यू अगेन नेक्स्ट वीक, थैंक यू।